तो हो नहीं पाया था। हाँ, Yes, sir. Good morning. good morning. So today, hope Holi festival was great for all of you, and you all are safe along with your parents, relatives, and friends. So continuing with the unit 3, marketing and finance. Today we'll go through the marketing mix, consumer and business marketing, and market targeting. So let us see first of all marketing mix. What is marketing mix? Now the marketing mix basically, what is marketing mix? It refers with the set of strategy or the way we are going to handle. Actually, the company used to promote the product and its brand range. So with the actions or with the strategy, how we are going to build our brand and its product, that we have to look. And for that we need to apply 4 P's of the marketing mix. Now what are those 4 P's? These 4 P's are product, promotion, place, and price. Okay, now normally all P's also include nowadays packaging, positioning, and people. Even in other places, it plays a vital role. Now, let us go through what are the 4 P's in detail. The 4 P's are basically the price, product, promotion, and place. Now, the price refers to obviously a price of a particular product that depends upon variables, many variables. Now, it's like cost of production. Now, which segment we have targeted, ability of the particular targeted market of paying capacity of a, you can say, paying capacity of a particular market. Then also it depends upon the what is the supply and demand available in the market for a particular for a particular range of a particular product. And now so these are the factors which we have to look into while putting the price of a product. Now there can be some other pricing strategies which will lead the overall business plan. And pricing also, it's used for demarcation to differentiate the image of a particular product, because a price should be price is a unique feature. Earlier we used to see the prices were like 650, 450, you know. Now somewhere if you go, uh, it's again a strategy. 1000 रुपए की कोई चीज है तो they will quote 999. Few companies have initially, one or two companies have initially, segregated themselves by putting these kind of prices, because it puts an psychological impression to the people. Now it's also, you see some companies are doing like कोई 111 रुपए, 121 रुपए, 131 रुपए, ऐसा भी आता है कई बार. So they used to do this kind of thing. Although किस सेगमेंट को उन्होंने टारगेट किया उस हिसाब से वो प्राइसिंग रखते हैं, कॉम्पिटिटर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, खर्चा कितना हुआ, ये सारी चीजें वो देखते हैं. एंड देन इवन उस प्राइस टैग के हिसाब से भी आपकी कंपनी अलग ही वो हो, हाईलाइट हो मार्केट में, वो भी वो देखा जाता है. कुछ कंपनीज जो प्राइसिंग होती है वो 505, 506, 486 ऐसे करके आती है, तो उनकी सारी प्रोडक्ट रेंज में सारे प्राइजेस जो रहते हैं इसी उसके होते हैं. तो इस तरह से रहता है. अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस ब्रांड को वॉच कर रहा है तो ही और शी मस्ट बी नोइंग कि इसकी जो प्राइसिंग है वो अलग ही रहती है. तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो किसी भी तरीके से वो करते हैं. प्लस एक तो प्राइस की वैल्यू जो वो रख रहे हैं,
वो उनके पॉकेट साइज में होनी चाहिए, प्लस उससे वो ये पता कर पाए अरे इस तरह का प्राइस है तो ये वाली ब्रांड होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली ब्रांड ही इस तरह की प्राइसिंग रखती है। तो ये भी एक फीचर है किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। देन कम्स दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इटसेल्फ जो हमको बेचना है, तो वो हमको मतलब प्रोडक्ट जिसके लिए हमने बनाया है, जो एक्चुअल उसको परफॉर्मेंस डिलीवर करना है, वो एटलीस्ट मिनिमम बेयर लेवल तक करे। वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर दैट हैज टू deliver the performance up to the maximum, to the maximum satisfaction of the customer, but at least वो बेयर मिनिमम लेवल पे जाए ताकि कस्टमर कंप्लेंट मोड में ना आए। एटलीस्ट वन हैज टू टेक केयर ऑफ दिस अबाउट देयर प्रोडक्ट। इफ product is performing up to the maximum of the limit, then it is okay, but sometimes products are like electronic projects, so electronic products are like या कोई और प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिनकी गारंटी भी कई बार फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाते। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कई बार खराब निकल आते हैं। सो उससे ब्रांड इमेज को बहुत धक्का लगता है। सो प्रोडक्ट की टेस्टिंग उस इसके कारण पर पीस भी होती है, बट इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑल्सो। और अगर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो जो बेस्ट वर्क है मार्केटिंग मिक्स का, वो प्रोडक्ट सेगमेंट जो अपन पढ़ रहे हैं वो नहीं दे पाता है। तो एक भी अगर चारों में से बीट करता है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन में से, तो ब्रांडिंग जो है वो या मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रैटेजी है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। देन कम्स प्लेस। नाउ व्हाट इज प्लेस? इट रिफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल। नाउ मतलब पॉइंट ऑफ सेल माने कहाँ मैं इसको बेच रहा हूँ। हर इंडस्ट्री में आई कैचिंग है कस्टमर की, एंड उसको ईज देना है बाय करने के लिए। जैसे चीजें पहले स्टॉल्स में मिलती थी, शॉप्स में मिलती थी, मॉल्स में मिलती थी, आजकल ऑनलाइन भी मिलती है। तो ऑनलाइन में आप कुछ भी करो, किसी एड में, किसी ऐप में वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। माने यू थिंक फॉर अ प्रोडक्ट, एंड उस उससे जुड़े हुए जितने ब्रांड्स हैं ऑटोमेटिकली आपका गूगल या आपका मोबाइल आपको दिखाएगा, बिकॉज दे नो, दैट्स व्हाट एआई वर्क्स हियर। तो वट एवर यू रेगुलर सर्चेस, दे शो दैट यू फर्स्ट कि ये टाइप का प्रोडक्ट है। इफ यू सर्च फॉर अ पेन, तो और अ पर्टिकुलर प्राइस यू हैव सीन, तो उस रेंज और उस तरह के प्रोडक्ट की कम से कम 5-6 टॉप प्रोडक्ट्स को वो आपको हाईलाइट कर देगा विद देयर रेटिंग्स, रिव्यूज, इफ इट ऑल अवेलेबल। ये सारी चीजें वो आपके सामने रख देगा, बिकॉज दे वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ डेटा माइनिंग, है ना। So it is the main aim of distribution of place strategy. Now retailers has to pay a, a price or a premium for a right location, but in fact the it's exactly the mantra for successful retail business is location. We all know it is always location, location and location. The better will be the location, whatever may be the rent or price of a shop. Location is quite important for a particular business. Now since location of shops are quite costly, people used to sell it on those apps and websites available with us. So normally what they used to do, either they used to deliver the products through postages, or couriers के through sell करते हैं, या home delivery अपनी local shops में भी करते हैं. So now today is the trend, तो promotion और place में इस तरह की चीज आ गई हैं. So यहाँ जो हम बात करते हैं प्रमोशन में फिर वहां पर पैसा बचता है हमारा, इसलिए हमको चीजें कॉम्पिटिटिव और सस्ती मिलती हैं, ठीक है। तो वो फर्क पड़ जाता है उसमें। Now what are the importance? First of all, let us understand the importance of the marketing mix. So what is the important of the marketing mix? All the elements, all the 4 elements rather of marketing mix definitely influence each other.
ये कोई भी प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अकेली वर्क करे। ये चारों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते ही हैं। ये अगर प्राइस प्राइस हमारी सही नहीं है तो प्रमोशन प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। प्रमोशन अगर हमारी सही नहीं है तो प्रोडक्ट की सेल में दिक्कत आएगी, भले इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। प्राइस कैन बी अ यूनिक फीचर, बट अगर आपकी प्लेस सही नहीं है, आपकी प्रमोशन सही नहीं है, तो प्लेस कितनी भी सही हो, प्रमोशन सही नहीं है तो कस्टमर को पता ही नहीं है, एडवर्टाइजिंग आपने नहीं करी। प्रमोशन क्या है? आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आपने देखा होगा कोई नया टूथपेस्ट मार्केट में आता है तो इवन कोलगेट इतना पुराना हो गया है, इसके बाद भी कोलगेट यूज टू व्हाट दे यूज टू डू, कोलगेट यूज टू सप्लाई छोटे छोटे ट्यूब्स आते हैं, बिल्कुल जो मार्केट में भी कई बार नहीं मिलते। मार्केट में भी 10 रुपए वाला मिनिमम मिलता है, वो उससे भी छोटा एक ट्यूब बनाते हैं और स्कूल्स में जाके बच्चों का फ्री डेंटल चेकअप कर लेते हैं और उनको एक छोटा सा ब्रश और कोलगेट की तरफ से और एक पेस्ट दे देते हैं कि बेटा इससे करना, ये सही रहेगा। तो होता क्या है, कस्टमर के दिमाग में कस्टमर खुश हो जाता है कि मुझे वो फ्री की चीज मिली, लेकिन छोटे बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि ये मुझे डॉक्टर साहब ने दिया है, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। और इसी तरह से मैक्सिमम जो उनके पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में भी जाता है। इस तरह से कोलगेट या दूसरी कंपनीज भी आजकल ये करती हैं। तो प्रमोशन तो भले ही हमारा प्रोडक्ट स्टेबल भी है तब भी प्रमोशन की जरूरत तो है। इट इज नॉट कि हो गया प्रमोशन बहुत अच्छा हो गया, वी आर इन ए कैटेगरी नाउ, नाउ वी डोंट नीड एनी प्रमोशन। नो बॉस, today's market is like many competitors are there। बहुत सारी तरह की टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे तरह का सब कुछ है, यहाँ बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट पे बहुत सारी रेंज है, प्राइस वाइज, ब्रांड वाइज, एवरीथिंग वाइज बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। तो वन हैज टू बी ऑल द टाइम ऑन द टोज फॉर putting all the best of the efforts in promotion, place, product and price on all four segment of these will put together to get the best or successful marketing strategy. So all elements of this marketing mix is really influence each other and all together they work for a particular product to be to get a successful benchmark. Now they make up a business plan as per these four, and that has to be handled very perfectly to get a grand success. Another thing, if this if this has not been handled properly, then in the business world it may take a blow off and may take many years to recover even. So that marketing needs a lot of understanding and market research and consultation of the market people also. Many people are there who are specifically doing the exclusive brand management for many companies. So sometimes company used to ask those people and refer those people to put their product on the best of the this thing, है ना? So it happens, and we have to actually get into the same whenever we are putting a branding part or promotion part of a particular this thing of a product of our own, है ना? Then comes the consumer marketing, business marketing and market targeting. Now let us understand that what is consumer marketing and business marketing. Now consumer marketing, it's like, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक मार्केट एक वो जगह है जहां बायर सेलर दोनों होते हैं। बिना बायर के सेलर कुछ नहीं कर सकता, बिना सेलर के बायर कुछ नहीं कर सकता। दे बोथ पुट टुगेदर, दोनों एक साथ होंगे तभी मार्केट, वो जो प्लेस है वो मार्केट कहलाएगी। ठीक है, ऑल दीज बायर्स एंड सेलर्स आर इंटर रिलेटेड, है ना, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, तो कनेक्ट विथ ईच अदर। और बायर सेलर के हिसाब से भी कई बार अगर बायर सेलर की जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है, उसके कारण भी डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ सकता है। इट इज नॉट कि माल कम आ रहा है इस कारण से
प्राइस बढ़ा हुआ है या माल ज्यादा आ रहा है, इस कारण से प्राइस घटा हुआ है। समटाइम्स इट हैपन्स, लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स बहुत कम हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बायर्स बहुत कम है, सेलर्स बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएगा। वो भी एक कारण होता है डिमांड सप्लाई में के चेंज आने का। नाउ फॉर द पर्पस, नाउ one thing is common in both the markets, that is industrial as well as consumer market. uh, Same kind of activity it takes place actually. However, the difference lies in the audience, where there are uh, the different markets available for both of them. Industrial market is different, and consumer market is actually different. So in consumer market, what happens actually, the buyer is always the end customer. Okay, end customer of the consumer market is जी जो final चीज बनी हुई है, उसको वो जो मार्केट होता है उसके लिए है। और इंडस्ट्रियल मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मार्केट ऐसा होता है, वो सेमी फिनिश्ड गुड आपसे खरीद रहा है या रॉ मटेरियल आपसे खरीद रहा है, और फाइनली वो एक प्रोडक्ट बना के बेच रहा है टू द कंज्यूमर मार्केट, है ना। जैसे एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो जिससे खरीदेगा उसके लिए वो इंडस्ट्रियल मार्केट हुआ। और फिर वो कंपनी जो टूथपेस्ट बना रही है, वो जब बेचेगी तो वो कहाँ बेचेगी? कंज्यूमर मार्केट में बेचेगी। कंज्यूमर मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो खोलो और इस्तेमाल करो वाला होता है। उसमें प्रिपरेशन वाली जरूरत नहीं है। जैसे टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम्स है, ब्लेड्स है, उसमें आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं करना, लगाओ और चालू हो जाओ वाला हिसाब है। तो और जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, वो इधर रॉ मटेरियल रिसीव कर रहा है या सेमी फिनिश्ड रिसीव कर रहा है, ताकि वो फिनिश्ड को डिलीवर कर सके टू द कंज्यूमर मार्केट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। Okay, so what is consumer marketing? Now, consumer marketing is that refers to the transaction of goods and services between the organizations and potential customers. Now, what are those potential customers? Again, the end users, जो product के end users हैं, goods और services के. Now, what is business marketing? Let us understand this. Business marketing refers to exactly the sales of either product or services, or both, to one or various organizations available. Uh, this further can be resale availability is there, or you can utilize utilize to support their own system also. Many consultancy companies are there, और many जैसे कहना चाहिए कि बिचौली कंपनियां होती हैं, या मीडिएटर्स होते हैं, या कंसल्टेंसी फर्म्स होती है। तो ये जो फर्म्स होती हैं, ये या तो किसी तरह का प्रोडक्ट बेचती हैं या सर्विसेज बेचती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेचती हैं, और उस सर्विस को वो रीसेल या रीयूज भी कर सकते हैं, या उसका अपडेशन भी कर सकते हैं। जैसे वायरस है, सॉरी एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस आप सेल करते हो, तो एंटीवायरस जब आप सेल करते हो, तो आप उसको एक ही चीज को बार बार सेल करते हो। इस साल एंटीवायरस दिया, फिर अगले साल उसको अपडेट करना है, तो वी हैव टू we have to again either approach to the same company, or you can switch to some other thing also, other company also. But at least uh, many of the people used to do like, जो है मेरे पास जो एंटीवायरस है उसी को मैं अपग्रेड करूंगा इफ आई हैव एंजॉयड इट, है ना, या सस्ता था, मेरा काम उसमें हो गया। तो इस तरह की चीजें होती है नॉर्मली। तो हर साल वही चीज या तो वो सेल कर रहा है, और थोड़ा सा फीचर्स में अपग्रेड करके वो दे रहा है, तो सेम टाइप की चीज वो रीसेल भी करेगा, और आपके सिस्टम को उस तरह से उसके सपोर्ट भी मिलती है। नाउ whatever above definitions we have seen of business marketing, consumer marketing, the major highlight difference between the two are commonly used in B2B marketing and B2C marketing. Now, what is these business to business marketing and business to consumer end marketing, है ना। तो business marketers जो होते हैं, they do not enter consumers who purchase products and services for their end use. They deals with the business and another business and firms only.
Okay, so that is B2B marketing, and B2C is B2C is potential customers. B2C is like business to end consumers. तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. और देन so if anybody says in future to you what is B2B and B2C, you should be able to understand it is business to business or business to consumer. This kind of the market is there. Now what is market targeting? Now let us understand what is market targeting, कैसे की जाती है, और क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं मार्केट को टारगेट करने के लिए. जस्ट अ मिनट. Now, market targeting is exactly a process of, selecting the target market. कैसे हमको वो टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है पूरे मार्केट से, तो ये चीजें हमको समझनी होंगी, ये चीजें हमको देखनी होंगी कि हमको कैसे सिलेक्ट होना है ना. ये हमको देखना होता है कि कैसे हमको पता करना पड़ेगा कि वो मार्केट, एंटायर मार्केट में से वो पर्टिकुलर मार्केट ही हमारे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन या ब्रांड के लिए है. सो दैट कंटेन्स, बिकॉज मार्केट कंटेन्स many different type of groups of buyers, जिनको हमको एक्चुअली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाई करना है, जिनके लिए हमने प्रोडक्ट प्लान किया है, बनाया है, और उनके लिए हमने सारे एफर्ट्स किए हैं जो मार्केटिंग मिक्स में थे, जो कि प्राइस था, प्रमोशन था, प्लेस था, है ना. प्राइस प्लेस प्रमोशन और क्या था, प्रोडक्ट, है ना. तो ये चार चीजें थी जिनके लिए हमने पूरा मार्केटिंग मिक्स का स्ट्रैटेजी किया था. और फिर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी प्लान करना होगा आगे फर्दर काम के लिए. तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को ये करेंगे. तो टारगेट मार्केट निकालना इस प्रोसेस का मेन एम है ना. जो टारगेट मार्केट है वो हमको निकालना है. कैसे निकालना है, ये एक पूरी प्रोसेस है, और वो हम अगर सही नहीं कर पाए तो अगेन जो हमारा पर्पस है अच्छे बिजनेस प्रॉफिट का, वो नहीं मिल पाता है यहाँ पर, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद इन लिटिल डीपर एग्जांपल या डीपर थॉट. जैसे एक कंपनी है, कैनॉट कंसंट्रेट ऑन ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, है ना. तो कंपनी नीड्स टू कंपनी, समटाइम्स यू हैव सीन, समटाइम्स यू हैव सीन एक कंपनी है, चाहे नमकीन की हो चाहे कोई भी हो, उसने मतलब पूरे सेगमेंट में फैला रखा है. नमकीन माने हर तरह का नमकीन आ रहा है उसका, हर तरह का नमकीन आ रहा है, हर तरह का प्रोडक्ट आ रहा है उसका नमकीन में, जो भी लोग खाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट हर प्रोडक्ट का चलेगा. उसमें कुछ डेफिनेटली टॉप में होंगे, है ना. से आलू भुजिया बहुत अच्छा चल रहा है, या उसका कोई पर्टिकुलर दूसरी चीज बहुत अच्छी चल रही है. मान लीजिए उसके 15 तरह के अलग अलग चीजें हैं, 5 टॉप हिट लिस्ट में है बिल्कुल, ये इसके लिए पब्लिक मरी जा रही है, बिल्कुल इतने दमदार है. 6-7 उसके बाद और जो प्रोडक्ट है वो बड़ी एज के लोग उसको बहुत खा रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे वो आ रहा है. लेकिन 3-4 उसके ऐसे सेगमेंट हैं जो पिट रहे पूरी तरीके से. उसको अननेसेसरी कस्टमर को, मतलब जो कस्टमर बोले तो रिटेलर जो है उसको बोलना पड़ रहा है कि नहीं, आप हमारे साथ माल खरीदोगे तो आपको ये भी खरीदना पड़ेगा हमारा. तो जबरदस्ती हम चिपका रहे हैं उसको. तो कई बार क्या होता है कि इसके कारण रिटेलर्स का मन खराब होता है या कस्टमर का मन भी खराब होता है. अब चूंकि आपने रिटेलर को जबरदस्ती चिपकाया, वो कस्टमर को जबरदस्ती चिपकाएगा, और रिटेलर का मन भी खराब होता है उसके कारण, और कस्टमर का मन भी खराब होता है. तो होता क्या है, अब आपने ये चीज हुई तो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रेवेन्यू तो कम था, है ना. तो उसमें ये चीज बड़ी आसान होती है कि हम
थोड़ा सा उसको समेट लें इन द सेंस कि इधर उनकी प्रोडक्शन थोड़ी कम करके देखें उन सेगमेंट्स की, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें प्रोडक्ट की मार्केट में देने की, ताकि जो रिटेलर हमसे खरीद रहा है, जो एंड कंज्यूमर को डील करेगा, वो प्लस कस्टमर दोनों खुश हो, क्योंकि वो एंड कस्टमर तभी खुश है और तभी खुश है जब उसको उसकी मनपसंद चीज समय पे और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। ठीक है। और रिटेलर को भी तभी मजा आता है बिजनेस करने में अपने काउंटर पे, जब वो कस्टमर की मनचाही चीज को उसके हाथ में दे पाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड विद हैवी हार्ट रिटेलर यूज टू से सर वो अवेलेबल नहीं है, सर वो माल आया नहीं है, सर वो माल पहुंचा नहीं है, सर इसकी जगह ये ले जाओ। वेरी इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट कि कस्टमर कभी नहीं खरीदेगा जो उसको नहीं चाहिए। आपके रिटेलर के व्यवहार के कारण उसने खरीद भी लिया तो कंपनी के लिए मुसीबत है। कितना भी कंपनी रिटेलर को एक्स्ट्रा इवन एक्स्ट्रा परसेंटेज का मार्जिन भी दे दे तो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर ड्रिवन मार्केट है। कस्टमर को जो चाहिए मतलब चाहिए, और वो उसको लिए उसको पे करेगा। समटाइम्स ऐसे अच्छे हाई क्लास मार्केट होते हैं, या जिसे कहते हैं ना, कस्टमर की नीड नहीं है, डिमांड नहीं है, वो वांट नहीं है, वो डिमांड है उसकी, माने ही और शी इज रेडी टू पे, उसको चीज चाहिए, बात खत्म। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर एंड द मार्केट सेगमेंट्स आल्सो। तो उनके उस प्रोडक्ट के जो मार्केट सेगमेंट्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, और बोथ एज आई डिस्कस्ड विथ यू। ठीक है। नाउ जब हम मार्केट को बहुत सारे जब मार्केट बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है, तो कंपनी को इवेल्युएट किया करना चाहिए उन उसके सेगमेंट्स के लिए, और डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कहाँ टारगेट करना है, मेरी सेल कहाँ ज्यादा हो रही है, कौन सी चीज कहाँ ज्यादा बिकेगी, कैसे मार्केट में बिकेगी, किन प्रोडक्ट लाइन में से किन 2-3 प्रोडक्ट्स को मैं हटा दूं तो मैं मैक्सिमाइज कर जाऊंगा, या उनको हटाऊं नहीं तो उनको रिप्लेस कर दूं उसका टेस्ट को एनहेंस करके दूसरी चीज उसमें दूसरा प्रोडक्ट में लाके, सो दैट पूरी प्रोडक्ट लाइन मेंटेन रहे और हमेशा बढ़िया हो जाए। या बिल्कुल नहीं हो रहा तो वो 2-3 प्रोडक्ट लाइन से हटा दिए ताकि मेरी प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट क्लास रहे हमेशा के लिए। इट इज वेरी इट इज सिंप्लीफाइंग प्रोसेस, एक सिंप्लीफाई करना है एंड फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट, क्योंकि प्रोडक्ट डाल के भी हम टारगेट मार्केट को चेक कर सकते हैं, सैंपल प्रोडक्ट डाल के कि किस तरह के कस्टमर से डिमांड आ रही है। सो बट दैट इज अ कॉस्टली दिस थिंग, कॉस्टली अफेयर है। एक है हम सर्वे करा लें, और दूसरा है हम कि उसके छोटे पैक्स बना के मार्केट में इधर बहुत कम दाम पे बाय वन गेट वन फ्री, या फ्री ऑफ कॉस्ट पाउचेस प्रोवाइड कराएं और कस्टमर से तब फीडबैक लें। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नाउ लेट अस सी नाउ हाउ markets are segmented. Markets are segmented on many bases like income, place, education, age, life cycle, and so on. Many features are there which has to be taken care while selecting a particular market, and now few segments has to be selected to serve them, which actually suits our product. Say अगर लैपटॉप है हम बेच रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली या बिजनेस से रिलेटेड बंदा या एजुकेटेड बंदा ही उसको खरीदेगा, है ना। और अगर हम टूथपेस्ट बेच रहे हैं तो लो इनकम क्लास भी खरीदेगा, हाई इनकम क्लास भी खरीदेगा, मिनिमम इनकम वो हाई वाला भी खरीदेगा, मीडियम वाला भी खरीदेगा। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि मैं क्या बेच रहा हूँ, मेरी टूथपेस्ट उसकी पॉकेट साइज में है कि नहीं। अगर मैं हाईली मेडिकेटेड बेच रहा हूँ जो 100 रुपीज से ज्यादा की है टूथपेस्ट, तो मिडिल क्लास थोड़ा उसको टच करेगा और हायर क्लास टच करेगा। अगर प्योरली मेडिकेटेड टाइप की है तो अगर वो 50-70 के बीच में आ रही है तो मिडिल क्लास डेफिनेटली उसको खरीदता है, और लोअर क्लास के भी कुछ बंदे खरीदते हैं। लेकिन अगर वो उससे भी नीचे है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम वाली टूथपेस्ट जो होती है, तो और अगर वो 50-40 के आसपास मिल रही है, तो उसको लोअर क्लास और मिडिल क्लास दोनों अटैक करते हैं।
तो इस तरह से हमको मार्केट को टारगेट करने के लिए देखना चाहिए. Now there can be many other definitions, many other parameters, and many you know professors or researchers have given many things. Now let us just understand first of all the procedure of market targeting. Now market targeting दो तरीके से है. एक है evaluation of the market segments और दूसरा है selecting market segments. नाउ अब आप evaluate कैसे करोगे? Evaluating the market segments. अगर evaluate करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस या सूटेबिलिटी कैसे है मार्केट में, और उसको अट्रैक्टिवनेस को पता करने के लिए आपको उस सेगमेंट की पहले तो अट्रैक्टिवनेस पता करनी पड़ेगी. दूसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव और रिसोर्स जो है कंपनी का वो कैसा है. तो इन दो चीजों से आपको ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस पता पड़ जाएगी, जिसके कारण आप ये पता कर पाओगे कि इवैल्यूएशन कैसे हमको करना है मार्केट में. एक्चुअली दिस evaluation has to be done by measuring the suitability of a particular segment. Now this segment is evaluated with certain relevant criteria, as I told you, of attractiveness of segment and objective and resources of the company to check the feasibility, by evaluating the market segments. Now, secondly, the selecting the market. Now, after evaluation, what you need to do is to select the market. So, the evaluation of segment, once the evaluation of the segment is over, as I told you, the company has to decide which market segment to enter. Now that depends upon the segments, how many segments we can cater, and the task is related to the target market. Now, as I told you, target market has various group of buyers whom company wants to sell, but each tends to to be similar in need or characteristics. So first, our Philip Kotler, जो marketing के guru हैं, he is giving 5 alternative patterns to select the target markets, and that depends upon the options on simulation prevailing inside and outside of the company also. Now many this thing, first of all, single segment concentration. Company can concentrate. It's the simplest case. Only single segment one can cater into. Then comes the selective specialization, 2 to 3 segments, जैसे मैं बोल सकता हूँ. Then comes the product specialization. बिल्कुल आपका जो product है वो दूसरी जगह available है, but you are specialized for this. You are known for the specialization of the same. And third is the market specialization. वो market ही ऐसा है कि उसमें उसी तरह की चीज चलेगी. So that also depends. Now another last one is the full market coverage. पूरा मार्केट हमको कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. तो फुल मार्केट कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा अनडिफरेंशिएटेड मार्केट और डिफरेंशिएटेड मार्केट, दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे. और आपको उसमें जो कॉस्टिंग होगी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में, वो क्या क्या होगी? मार्केटिंग रिसर्च की कॉस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रमोशनल कॉस्ट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट पुट टुगेदर टू गेट द डीपर मार्केटिंग strategy for if you really want to go to cover full market, then and only then you can do this. Okay, so we have completed the today's targeted portion. If you have any doubt, you can ask me now. Okay, thanks for attending. I hope everything is clear. By tomorrow we'll do advertising publicity and CRM. In tomorrow's lecture we'll cover that, and afterwards we'll start finance, basics of finance required for a business model. Thank you once again. Thank you, sir.